بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ہذیانی انداز میں ہنسا۔ میں کس کس کا نام لوں؟ سب میرے دوست ہیں، کوئی میری دوستی میں اور کوئی اس ملک کی دشمنی میں جانے یا انجانے میں میری مدد کرتا رہتا تھا۔ کیا ان میں اوبرائن ڈی ہنٹ بھی شامل تھا؟ میں نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ وہ خود کو نئے ایشیا کا افلاطون کہتا تھا۔ اونچے حلقوں میں بیٹھ کر دوسروں کی کامیابیوں کو اپنے سر منڈ لینا اس کی قابل نفرت عادت تھی۔ وہ مجھے اور رستم کو بھی اپنا تابع بنانا چاہتا تھا۔ رستم کسی سے دبنے یا ڈرنے والا آدمی نہیں تھا، وہ اوبرائن سے نفرت کرتا تھا۔ تمہیں اوبرائن کے انجام کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ اس نے اپنے سر کو اسباد میں جنبش دیا اور کہا، اچھے لوگوں کو سب بھول جاتے ہیں مگر بروں پر ہر ایک نظر رکھتا ہے۔ نئی دہلی کے کسی حادثے میں کتے کی طرح مارا گیا تھا۔ تمہیں رستم کے اصل کاروبار کا ہی علم ہوگا، ایسا تو نہیں کہ رستم ہی نے اسے مروا دیا ہو۔ مجھے پتا نہیں مگر میں دو باتیں ضرور جانتا ہوں۔ پنڈت اپنی بگڑی ہوئی حالت پر تیزی سے قابو پا رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ اونٹ کی طرح پکا کینہ پرور تھا اور اوبرائن کی موت پر اس نے کھل کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رستم اور پنڈت نفرتوں کے سوداگر تھے۔ وہ بھاری مالی خسارہ اٹھانے کے باوجود دو مملکتوں کے خلاف اپنا بغض نکال رہے تھے۔ اوبرائن رابر مائر مفت میں ان سے فیض حاصل کر رہا تھا۔ اس پورے کھیل میں میرے لیے سب سے بڑی الجھن یہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ جب رستم اور اوبرائن کے مشن یکساں تھے تو رستم نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے 10 لاکھ روپے کے عوض اسے ٹھکانے کیوں لگا دیا تھا؟ پنڈت منوہر لال کی قوت گویائی بحال ہوتے ہی مجھے اس سوال کا مسکت جواب مل گیا تھا۔ اسے اوبرائن سے نفرت ضرور تھی مگر وہ اس کے قتل کے بارے میں نہیں سوچ سکا تھا۔ ملک ممتاز نے اس کام کے لیے اسے اعتماد میں لیا تو اس نے اس سودے کو عام کے عام گٹھلیوں کے دام سمجھ کر بے چون چرا قبول کر لیا۔ قتل نئی دہلی میں ہوا، اس لیے رستم کی ذات ہر شک و شبے سے بالا رہی۔ اس کو ایک دشمن سے نجات مل گئی اور اس کام کے 10 لاکھ روپے بھی ڈالروں کی صورت میں مل گئے ہیں۔ رستم کو اس سودے میں نفع ہی نفع نظر آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ملک ممتاز سے 10 لاکھ لے کر وہ اس سے اپنی جان کا سودا کر رہا تھا۔ پنڈت سے جو نئی باتیں معلوم ہوئی تھیں وہ اپنے نواسے کے بارے میں رستم کی گہری فکر مندی کے اسباب بھی مہیا کرتی تھی۔ رستم ایرانی نژاد تھا، وہ خود وہاں سے بھاگ آیا تھا، لیکن اس کی موت کے بعد پاکستان میں حالات موافق نہ ہوتے تو اس کے خاندان کے باقی ماندہ افراد ایران کی طرف کوچ کر سکتے تھے۔ بے یارو مددگار عورتوں کو شاید ایران میں پناہ مل جاتی، لیکن رستم کے اکلوتے وارث کے لیے وہاں کوئی جگہ نہ تھی۔ رستم کے دل میں چور تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بسیرا پر آپریشن کے بعد رفتہ رفتہ ساری حقیقتوں پر سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا۔ دنیا کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایران کے خلاف تعصب پرست یہودی مفادات کی پاسبانی کرتا تھا۔ اس کے نواسے کو وہاں جگہ مل بھی جاتی تو وہ ذلت و رسوائی اور غداری کے الزامات سے ہمیشہ سرنگوں رہتا، کبھی جاہو حشم کی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ کینہ پرور رستم حساب کتاب اور جوڑ توڑ میں بہت طاق تھا۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس نے جو فیصلہ کیا وہ شاید اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ تھا۔ رستم براہ راست ایران کے معاملات دیکھتا تھا، تم پاکستان کے نگران تھے مگر تم رستم ہی کو جواب دے تھے۔ تمہاری اطلاعات اور رپورٹیں رابر مائر کے ذریعے تیل ابید پہنچاتا تھا۔ میں نے پوچھا، تم رستم کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ پنڈت جلا کر بولا، سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود مجھ سے اسی کے بارے میں پوچھے جا رہے ہو۔ وہ مر گیا ہے، اس کا قصہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ مجھ سے رابن کی بات کرو، آستین کے اس موذی سانپ کی جو ابھی تک زندہ ہے۔ جب تم رستم کو جواب دے تھے تو رابن کو براہ راست فون کیوں کرتے تھے؟ وہ فون اور فیکس ذاتی کاموں کے لیے ہوتے تھے۔ میں نے تم کو بتایا نا کہ ہمیں اس سے صرف کچھ مراحت ملی ہوئی تھی، اس کے ذریعے ہم کسی کو بھی امریکہ کو کوئی ویزا دلوا سکتے تھے، وہاں کے تعلیمی اداروں میں داخلے آسانی سے مل
جاتے تھے۔ ان احسانوں کے بدلے میں اس کے لیے معلومات حاصل کیا کرتا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ مجھے اتنی بے رحمی سے استعمال کرنے کے بعد وہ یوں میرا سینہ چھلنی کر دے گا۔ رپوش ہونے کے بعد بھی تم نے اس سے بات نہیں کی۔ میرے پاس رابن مائر کے بارے میں سوالات کی کوئی کمی نہیں تھی اور وہ سلسلہ معلومات افزا تھا۔ رستم کے گھر سے میں نے 2 بار اس سے بات کی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتا رہا کہ کوئی نقصان ہونے سے پہلے وہ مجھے اور موہنی کو پاکستان سے نکال لے جائے گا۔ تم نے پاکستان کے دفاعی راز بھی رابن مائر کو فراہم کیے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بے ساختہ اپنے کان پکڑ لیے، بس اسی بات پر وہ ناراض رہتا تھا۔ میں ایسے معاملوں میں ہاتھ ڈالنے والوں کی کئی لرزہ خیز کہانیاں سن چکا تھا۔ میں نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ وقت مل جاتا تو شاید میں اس کے دباؤ سے مجبور ہو کر ادھر بھی چل پڑتا۔ ابھی تک میرے ہاتھ صاف ہیں۔ مجھے ان لوگوں کے نام درکار ہیں جو بڑے سرکاری عہدوں پر ہیں اور ویزوں یا داخلوں کے لیے تمہارے احسان مند ہیں۔ تم نے کچھ نہ بتایا تو ہمیں رستم کے گھر سے ریکارڈ مل جائے گا۔ رستم کے گھر سے بے انداز دولت کے سوا تم کو کوئی غیر قانونی چیز نہیں ملے گی۔ وہ ہر کاغذ جلا کر تلف کرتا تھا۔ سارے کام اور حساب اس کی یادداشت میں محفوظ رہتے تھے۔ رستم کے قصیدے مت سناؤ۔ رابن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لیے مجھے چند اہم ناموں کی ضرورت ہے، ایسے نام جن کے لیے رابن نے کبھی کوئی سفارش کی ہو۔ کل تک یہ نام مل جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں یاد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ میں واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ میرے ساتھ وہ دونوں بھی دروازے کی طرف ہو لیے۔ بیٹھک نما کمرے میں پہنچتے ہی جلال جذبات سے مغلوب ہو کر مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ تم نے بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ تمہارا چلایا ہوا تیر صحیح نشانے پر لگا ہے۔ اس سے آج نئی باتیں ہوئی ہیں، کاش کل اسے سب اسی طرح یاد آ سکے۔ اول خان نے حسرت سے کہا۔ اس نے آج خود کچھ نہیں بتایا، جلال نے کہا۔ سب ڈینی کے سوالوں کے جواب تھے۔ ایسے ضدی مجرموں سے کچھ اگلوانے کے لیے خاص ڈب کے سوالات ضروری ہوتے ہیں۔ ڈینی نے آج یہ کام بہت خوبی سے انجام دیا ہے، اول خان نے اقرار کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ریسٹ ہاؤس میں کسی وقت بھی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس وقت میرے بڑے یہاں نہیں تھے، لیکن گفتگو کا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ کل ہمیں سوال دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کل نہیں، آج کہو۔ اس وقت صبح کے 3 بج رہے ہیں۔ میں نے انہیں توجہ دلائی اور دونوں ہی ہنس پڑے۔ تمہیں ایک دم ہی رابن مائر کے مردہ کو زندہ کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ گاڑی میں واپسی کا سفر شروع ہونے کے بعد جلال کو وہ سوال یاد آ گیا۔ اس کی آواز تعجب امیز تھی۔ کراچی میں بیٹھ کر میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا، یہ میرے مشاہدے کا نتیجہ تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ شدید صدماتی کیفیت کا شکار ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی لاش دیکھ چکا تھا۔ اسے رابن کے قتل کے بارے میں بھی معلوم تھا، مگر لاش اس کی نظروں سے نہیں گزری تھی۔ اسے جھنجھوڑنے کی ایک ہی ترکیب ہو سکتی تھی کہ اسے بیٹی کے خون کے انتقام کی ضرورت کا احساس دلایا جائے۔ یہ حربہ کام کر گیا۔ میں آخر تک اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ تم اسے کون سی بری خبر سنانے والے ہو۔ جلال بولا۔ اس کے بے ساختہ رد عمل پر میں پل بھر کے لیے ہل کر رہ گیا تھا۔ تم نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں موہنی کی آخری رسوم کی ادائیگی اس کے ذہن پر نقش تھی۔ اسے قابو میں رکھنے کے لیے یہ اقدام ناگزیر تھا، اول خان نے کہا۔ رحمان اس مشق سے متفق نہیں تھا۔ جلال نے اپنے ساتھی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، مگر میں بند گلی میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی افادیت کا یقین نہ ہونے کے باوجود میں نے محض اس لیے لاش کی فوری منتقلی کا فیصلہ کر لیا کہ یہ تم دونوں کا مشترکہ مشورہ تھا۔ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی باتیں دور رس نتائج کی حامل ہوتی ہیں، میں نے کہا۔ پنڈت سے بات کرتے ہوئے تم نے اس کی تازہ ترین فون کال کا بھی ذکر بھی چھیڑا تھا۔ کیا تم محکمے سے اس بارے میں کچھ کوائف حاصل کر لیے ہیں؟ جلال نے جاننا چاہا۔ پنڈت اور رستم کی 3 ماہ کی بلنگ کی مکمل تفصیل موجود ہے، میں نے اسے آگاہ کیا۔ کراچی سے واشنگٹن ڈی سی کا ڈائلنگ کوڈ 001202 ہے۔ دونوں کے بلوں میں اس کوڈ کے ساتھ 2 نمبر موجود ہیں۔ یقینی طور پر وہ رابن مائر کے ہی نمبر ہو سکتے ہیں اور رستم کے نمبروں سے ایران کے لیے متعدد کالز کی جاتی رہی ہیں۔ ان میں سے بعض کا دورانیہ 10-15 منٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اول خان نے میرے خاموش ہوتے ہی لقمہ دیا۔ وہ تفصیلات تم اپنے ساتھ لائے ہو؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کیوں؟ میں نے چونک
चौंकने की अदाकारी करते हुए चुभता हुआ सवाल किया, क्या तुम्हें वो रिकॉर्ड नहीं मिल सका? कल ही तो बात हुई थी। इसके लहजे में हल्की सी खिफत थी। PIA से आने वाली डाक अर्जेंट होने के बावजूद कभी कभी देर से मिलती है। हो सकता है कि कराची से पैकेट रवाना कर दिया गया हो और वो रास्ते में हो। वो नकलें मिल सके तो आज कई मरहले सर हो जाएंगे। बिलों का लिफाफा मेरे ब्रीफ केस में मौजूद है। अव्वल खान ने इसे याद दिलासा दिया। उतरते हुए मैं वो तुम्हें दूंगा। आज बहुत से चश्मकुशा हकायक सामने आए हैं जो टेप कर लिए गए हैं। वो बिल इनकी तस्दीक करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे ऊपर आया हुआ सफारती दबाव जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। हो सकता है कि इतना मवाद सामने आ जाने के बाद हमारे DG अमरीकियों से मुलाकात का फैसला कर लें। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे डायरेक्टर जनरल समेत कोई भी हुकूमती ओहदेदार बराह रास्त गैर मुल्की सफारती अफसरों से नहीं मिल सकता। क्या ये बंदोबस्त आज ही हो जाएगा? मैंने पूछा। ऐसे मामलात में दफ्तर खारजा राब्ते का काम करता है। ये मामला इस कदर अहम है कि वो लोग किसी ताखीर के बगैर मीटिंग तय कर लेंगे। अमरीकी भी हमारा मौकफ जानने के लिए सख्त मुस्तरब हैं। इनका इस्तराब काबिल फहम है। राबन मायर की मौत ने इन्हें बहुत नाजुक इम्तिहान में डाल दिया है। जाहिरी शवाहद इसके खिलाफ हैं। वो जानना चाहेंगे कि हमारे पास और क्या मवाद है। पंडित ने अपनी खामोशी खत्म कर दी है। अगर बयान का दूसरा हिस्सा सुनने से पहले इसे किसी बेहतर मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए तो वो बिल्कुल ही राम हो सकता है। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद अव्वल खान ने जुबान खोली, जब तक इसके बारे में आखिरी फैसला नहीं कर लिया जाता वो हमारे काम आता रहेगा। ये अंदाजा हो गया है। जलाल ने सर हिलाकर इसकी तायद की। तुम्हें बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि वो पुरानी बातें दोहराने पर आमादा हो जाए, मगर इसने नए अकदे खोलने शुरू कर दिए हैं। पता नहीं इसके जहन में अब भी क्या क्या महफूज होगा। वो खुलकर पाकिस्तान से अपनी नफरत का इजहार कर चुका है। मैंने कहा, इसका सबूत ये है कि वो किसी उजरत के बगैर राबन मायर के लिए काम कर रहा था। ऐसे गद्दार का सिर्फ एक ही अंजाम मुमकिन है। इसका काम पूरा होने के बाद इसे जल्द अज जल्द कैफरे किरदार को पहुंच जाना चाहिए। वो सुबह तड़के का वक्त था और पूरा इस्लामाबाद सोया हुआ था। सियाह कार और भैया शाहराह कश्मीर पर तेजी से दौड़ती रही। इस सड़क पर दूर दूर तक किसी गाड़ी या मुतनफस का नामो निशान नहीं था। वैसे पिंडी और इस्लामाबाद के एक दूसरे का जड़वा शहर कहा जाता है, मगर मजाज में दोनों शहर एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। पिंडी पर अस्करी तर्ज मुआशरत का गलबा है, इसलिए वहाँ के बासी शहर खेज हैं। मौसम के सर्दो गर्म की परवाह किए बगैर मुंह अंधेरे रोजी की तलाश में निकलने की तैयारियां शुरू कर देते हैं, जबकि इस्लामाबाद में जिंदगी की चहल पहल जरा देर से होती है। शाहराह कश्मीर से हमारी गाड़ी म्यूनिसिपल रोड पर मुड़ गई। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि पूरी रात काली करने के बाद जलाल हम दोनों को कहाँ छोड़ने वाला था। म्यूनिसिपल रोड कुछ दूर सीधी चलकर खुद ब खुद दाहिनी तरफ मुड़ जाती है। वहाँ हम निंदा सी रोशनियों में लिपटे हुए वीरान जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने से गुजरते हुए मार्केट रोड पर निकल आए। तेज रोशनी में नहाई हुई वो काली सड़कें ख्वाबनाक मंजर पेश कर रही थी। मार्केट रोड शालीमार मरकज के सामने राहे की सूरत में आगा खान रोड पर खत्म हो गई। वहाँ से हमारी गाड़ी दाहिनी तरफ घूमी तो मैं दिल ही दिल में इत्मीनान का सांस लेकर रह गया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक आगा खान रोड पर वाक़या हॉलीडे इन पर हमारे सफर का खात्मा हो गया। दुनिया के हर बड़े होटल की तरह वहाँ भी थका थका अमला अपने फराइज की अदायगी के लिए मौजूद था। पोर्टर के उठाने के लिए हमारे पास कोई सामान नहीं था। मैंने अपना थैला कंधे पर लटकाया। अव्वल खान ने ब्रीफ केस उठाया और हम जलाल के साथ होटल की रोशनियों में डूबी हुई पुरशुकू इमारत में दाखिल हो गए। जलाल ने काउंटर पर हमारे नाम बताकर चाबियां तलब की तो मालूम हुआ कि 5वीं मंजिल पर 2 मुत्तसल कमरे हमारे लिए पहले से महफूज करा लिए गए थे। वो आलीशान होटल आज भी इसी मुकाम पर मौजूद है, लेकिन नए इंतजामात के तहत वो होटल मैरियट में तब्दील हो चुका है। इसकी हर शाम बहुत रंगीन और दिलकश होती है। शहर भर के आसूदा हाल बेफिक्रे अपनी बेशतर शामें इसी के मुख्तलिफ हिस्सों में गुजारना पसंद करते हैं। इस वक्त जलाल पर हमारी एहसानमंदी और मेहमानदारी का भूत सवार था। अव्वल खान ने नीचे ही फोन बिलों वाला लिफाफा इसके हवाले करके इसे रुखसत करना चाहा, लेकिन वो हमें हमारे कमरों तक पहुंचाए बगैर वापस जाने पर आमादा न हुआ। सामान न होने के बावजूद एक पोर्टर साई की तरह हमारे साथ था। इसका कुल बोझ हमारे कमरों की 2 चाबियों पर मुश्तमिल था। पहले कमरे में दाखिल होते ही मेरी तबीयत खुश हो गई। ऐसे खूबसूरत कमरे में लंबी नींद लेने के लिए कराची से वहाँ तक का सफर
महंगा नहीं था। अब तुम दोनों लंबी तान कर आराम करो। जलाल ने मशवरा दिया, तुम्हारे दरवाजों पर नो डिस्टर्बेंस के टैग लगा दिए जाएंगे। अब 12 बजे रहमान तुम्हारे पास आएगा। इस यकीन दहानी के बाद जलाल फौरी तौर पर वापस हो गया। मुझे अंदाजा था कि इसने हमें होटल के कमरों तक पहुंचा दिया था, लेकिन इसके लिए बहुत सा काम बाकी था। कुशादा और बेदाग बिस्तर देखकर मेरी पलकें बोझल होने लगी थी। अव्वल खान पहला कमरा मुझे सौंपकर अपने ब्रीफ केस समेत बराबर वाले कमरे में चला गया। मैंने अपने ट्रैवल बैग में से शाब ख्वाबी का लिबास निकालकर कपड़े तब्दील किए और नाइट लैंप के सिवा तमाम रोशनियां गुल करके बिस्तर पर ढेर हो गया। अपनी नींद पूरी करके मैं खुद ही बेदार हुआ था। अकबी का खिड़की पर खिंचे हुए दबीज पर्दे की वजह से कमरे में सूरज की रोशनी का गुजर नहीं था। रात बल्कि सुबह सवेरे वाला समा जूं का तूं बरकरार था, लेकिन मेरे सराहने रखी हुई रेस्ट वॉच 10 बजने का ऐलान कर रही थी। निहायत इत्मीनान से तरोताजा होने और लिबास तब्दील करने के बाद मैंने अव्वल खान उर्फ अजहर खान के बारे में सोचा। अगर 10 बजे तक मेरी नींद पूरी हो चुकी थी तो इसे भी बेदार हो जाना चाहिए था। मैंने इंटरकॉम पर इसके कमरे का नंबर मिलाया तो वो मसरूफ था। अपना कमरा मुकफ्फल करके मैंने पड़ोस वाले दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से अव्वल खान की आवाज सुनकर दरवाजा खोल लिया। वो मुझसे पहले तैयार बैठा था और फोन पर अपने किसी आदमी से बात कर रहा था। मैं सिगरेट सुलगाकर सिंगल सोफे में दंस गया। शायद मेरी वजह से इसने जल्द ही गुफ्तगू खत्म कर दी और मेरी तरफ मतवज्जो होकर बोला, रात को मेरे आदमियों ने इन तीनों में से एक को पकड़ लिया था और इसको बुरी तरह मारा पीटा है। पीटने के बाद इसने बताया है कि वो तीनों अपने उस्ताद दाऊद के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे। दाऊद इनसे अलग थलग रहकर इशारों कनायों से इनको हदायत दे रहा था। इसी के इमाम पर वो मेरे आदमियों के पीछे रेस्टोरेंट में गए थे। वो आखिर तक वहीं था। इसने ये नहीं बताया कि ताक़ुब के बाद इन्हें क्या करना था। मैंने पूछा, ये सब कराची पहुंचने के बाद मालूम होगा। फिलहाल मैंने इन्हें दाऊद के पीछे लगा दिया है। हमारी वापसी तक इसे भी स्टेशन 4 पर मौजूद होना चाहिए। अब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, मगर इस वक्त का अहम तरीन मसला नाश्ते का है। वो मुस्कुरा दिया, मैं मालूम कर चुका हूँ। नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल बंद हो चुका है। हमें रूम सर्विस से रजू करना होगा। ये बताओ कि तुम क्या लेना पसंद करोगे। जो चाहो मंगवा लो और जलाल को भी इतला दे दो कि हम मुकर्ररा वक्त से पहले बेदार हो चुके हैं। अव्वल खान ने रूम सर्विस वालों को ऑर्डर दिया और फिर खुद ही जलाल का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। जलाल अपने दफ्तर में मौजूद नहीं था। इन तक इतला पहुंचा दो कि होटल से अजहर खान का फोन आया था। ये बहुत अहम और जरूरी मामला है। पैगाम देकर इसने फोन बंद कर दिया। नाश्ते से पहले ही रहमान हमारे पास आ पहुंचा। एयरपोर्ट पर इससे मुलाकात नहीं हो सकी थी। इसने बहुत तपाक और बेतकल्फी से हमें अपने शहर में खुशामदीद कहा और बताया कि जलाल अचानक बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया है। इसने अजहर खान और मजहर खान के बारे में अपने स्टाफ को ब्रीफ किया हुआ था। इसके पीए ने अव्वल खान का पैगाम फौरन ही रहमान तक पहुंचा दिया। इसका दफ्तर होटल से बहुत करीब था। वो हमें अपने साथ ले जाने के इरादे से होटल पहुंच गया। अव्वल खान के बेतुके ऑर्डर की वजह से 2 आदमियों के लिए आने वाला नाश्ता जरूरत से बहुत ज्यादा था। सिर्फ एक प्याली के इजाफे से रहमान भी हमारे साथ शरीक हो गया। इसने बताया कि वो सुबह 6 बजे से दफ्तर पहुंचा हुआ था। इसे भाग दौड़ की वजह से चाय की एक प्याली तक पीने का मौका नहीं मिला था। आखिर इस तरह हलकान होने की क्या जरूरत पेश आ गई। अव्वल खान ने नाश्ता के दौरान में रहमान से पूछा, मुजरम तुम्हारे कब्जे में है, तावन पर आमादा हो चुका है, फिर तुम क्यों भागते फिर रहे हो। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पंडित मनोहर लाल आसानी से जुबान खोलने पर आमादा हो सकेगा। मायूसी की वजह से बहुत सी जरूरी कार्रवाइयां अधूरी छोड़ दी गई थी। रहमान ने बताया, तुम्हारे पहुंचने के बाद एकदम पांसा पलट गया है। 7 बजे हमारे डीजी ने खुद पंडित से मुलाकात की है। किसी पूछगिछ के इरादे के बगैर वो सिर्फ ये देखने गए थे कि पंडित अब किस मूड में है। मैंने तो सुना था कि तुम्हारे डीजी को इसके एतराफात सुनने की फिक्र है। मैंने कहा, वो बात पुरानी हो गई। हुकूमत की एक जिम्मेदार शख्सियत के सामने इसका बयान लिया जाएगा। सब की मुतफिका राय है कि पंडित को बार बार छेड़ा गया तो वो बिदक जाएगा। सब कुछ एक मर्तबा हो जाना चाहिए। मैंने इससे इत्तफाक किया। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि रुस्तम और पंडित के मामले को इस कदर तूल क्यों दिया जा रहा है। 2 और 2 4 की तरह हर बात बिल्कुल सामने है। फैसला करके जरा सी देर में किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। बड़े फैसलों में ऐसी उलझने पैदा होती हैं। हमारी रूटीन का हिस्सा है। शाम की किसी प्रवास से हमारी रवानगी का बंदोबस्त कर दो। कुछ तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि रुस्तम के इंसानी हकूक का किजिया किसने उठाया था। कोई अकरम इलाही है,
वो कराची में ही रहता है, लेकिन इसका बकायदा दफ्तर खियाबाने कायद आजम पर ब्लू एरिया की एक इमारत में है। रहमान ने बताया। तो वो कोई पाकिस्तानी है? मैंने हैरत से पूछा। जलाल ने तो किसी बैनुल अक़वामी इदारे का जिक्र किया था। इसका दफ्तर इंसानी हकूक की एक बैनुल अक़वामी तंजीम का मुकामी हिस्सा ही है। अकरम इलाही फ्रीडम इंटरनेशनल की पाकिस्तानी शाख का चेयरमैन है। फ्रीडम इंटरनेशनल यहाँ NGO के तौर पर काम कर रही है। गैर सरकारी तंजीमें किसी न किसी की इमदाद से चलती हैं। इसे कहाँ से फंड्स मिलते हैं? ऐसे इदारों को बराए नाम सरकारी इमदाद मिलती है। बड़ी बड़ी रकमें बैरूनी इमदाद की सूरत में आती हैं। असूली तौर पर ये सरकारी ज़राए से तकसीम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि अकरम इलाही को भी कहीं से रकम मिल रही हो। शायद तुम्हें इस तरफ से तवज्जो देने का वक्त नहीं मिल सका। अगर वो कराची में है तो फिर हम इसे देखेंगे। रुस्तम जैसे गद्दार और साजिशी के हक में आवाज उठाने वाला नेक नियत नहीं हो सकता। ऐसे लोग मजबूत पुश्त पनाही के बगैर जुबान नहीं खोलते। एहतियात से देखना होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं, इनके क्या मकासद हैं और वो किस सिमत में जा रहे हैं। वो जो कुछ भी हो, रुस्तम और राबर मायर से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। जब इन दोनों के गिरेबान पर हाथ डाला जा सकता है तो अकरम किस गिनती में है? मुझे हल्का सा ताव आ गया। रुस्तम और राबर मायर बेशक मार दिए गए, बल्कि रुस्तम ने तो खुली खुदकशी की है, मगर इन वाकयात के नतीजे में पैदा होने वाली पेचीदगियां फैसलों में ताखीर का सबब बन रही हैं। एक वक्त में कई महाजों पर लड़ना दानिशमंदी नहीं है। मौजूदा गर्द दब जाए तो अकरम को हर वक्त देखा जा सकता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या इन लोगों पर गलत हाथ डाला गया था? मैंने पूछा। वो बेहतरीन फैसले थे, रहमान ने जल्दी से कहा। इसीलिए हर शख्स हालात संभालने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। हम लोग किसी हुकूमत की मजबूरियों को नजरअंदाज करके मन माने फैसले नहीं कर सकते। अव्वल खान ने मुझे इशारा करके कहा, कानूनी इदारों की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। सर्द जंग के जमाने में अमेरिका और रूस की हुकूमतें सब कुछ जानते बूझते हुए अपनी सरजमीन पर दुश्मन के एजेंटों को नजरअंदाज करने पर मजबूर थीं। ऐसी बर्दाश्त का मुजाहरा न किया जाए तो दो तरफा खून रेजियों का खत्म न होने वाला सिलसिला चल पड़ता है। अव्वल खान की वजाहत से रहमान को सहारा मिल गया। मेरा नुक्ता बिल्कुल यही था। राबर मायर की हरकतों के बावजूद ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि वो एक सफारती मेहमान बनकर यहाँ आया था और इसकी हिफाजत हमारे जिम्मेदारी थी। इसके जुराइम और बेएतदालियों की निशानदही करने के साथ साथ हमें इसके अंजाम पर रस्मी तौर पर इजहार अफसोस करना पड़ेगा। कानून से मावरा खून रेजी पर मजम्मत का इजहार बैनुल अक़वामी इखलाकियात का हिस्सा है। राबन के खिलाफ तुम्हारे मुहैया किए हुए सबूत जितने ज्यादा मजबूत होंगे, ताज़ीती बयान इसी कदर हल्का और नरम होता चला जाएगा। मैंने जवाब दिया। हम इन्हीं कोशिशों में लगे हुए हैं। सब की भागदौड़ इन मरबूत कोशिशों का एक हिस्सा है। रहमान ने कहा, हम अपनी जिम्मेदारी कम से कम रखनी चाहते हैं। मैं तुम्हें क्यूबा के फेडरल कास्त्रो की मिसाल देता हूँ। अव्वल खान ने कहा, वो शायद रूए जमीन पर अमरीकियों का सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्स है। CIA इस पर मुतअद्दिद कातलाना हमले करवा चुकी है, जो सब के सब नाकाम रहे। अगर वो आज किसी दहशत गर्दी का निशाना बन जाता है तो मेरी बात लिख लो कि गैर सरकारी तौर पर अमेरिका में जश्न मनाया जाएगा, मगर अमेरिकी सदर इसके लिए ताज़ीती बयान जारी करेगा जिसमें दहशत गर्दी की मजम्मत पर जोर होगा। अव्वल खान मेरी उलझन को समझ रहा था। इसी के साथ इसे ये फिक्र भी थी कि मैं कहीं रहमान से उलझ न पड़ूं। ऐसी किसी सूरत को टालने के लिए इसने निहायत बोंडे अंदाज में क्यूबा के सदर का जिक्र छेड़ा था, जो मैंने खामोशी से सुन लिया। इस पर मेरा कोई तबसरा ला हासिल था। इस हल्की सी तकरार के बाद हमने खामोशी से नाश्ता खत्म किया। आओ अब दफ्तर चलते हैं। नाश्ता करके रहमान ने अपनी जगह छोड़ दी। दफ्तर में हमारा क्या काम है? मैंने पूरी संजीदगी से सवाल किया। काम है भी और नहीं भी। रहमान मुस्कुराया। तुम हमारे मेहमान बनकर इस्लामाबाद आ ही गए हो तो हमारे DG तुमसे मिलना चाहते हैं। जलाल ने हमें 12 बजे तक सोने की आजादी दी थी। इसका मतलब है कि मतवक्को मुलाकात 1 बजे के लगभग ही हो सकेगी। मैंने मुस्तफसराना लहजे में कहा। शायद इतना वक्त हो जाएगा। रहमान ने मेरी तायद की। गपशप में ये वक्त आराम से गुजर जाएगा। हमें साथ ले जाकर तुम बंद जाओगे। आज तुम लोग वैसे भी काम की ज्यादती के शिकार हो। हम होटल में रहेंगे। DG आ जाए तो तुम आकर हमें दफ्तर ले जाना। ये नहीं होगा। रहमान अड़ गया। काम रोज होता रहता है। तुम रोज यहाँ नहीं आओगे। तुम्हें मेरे साथ दफ्तर चलना होगा। बोर होने लगोगे तो होटल वापस ले आऊंगा। मजीद इनकार इसके दिल में कोई बदगुमानी पैदा कर सकता
था मैं भी उठ गया। होटल की पार्किंग लॉट में रहमान की गाड़ी मौजूद थी। हम आगा खान रोड से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर मुड़े और जरा सी देर में कैंट ब्लॉक के बंद आहनी फाटक के सामने पहुंच गए। दरबान ने रहमान को देखकर सलाखदार गेट खोल दिया और एक करीबी हिस्से में गाड़ी पार्क कर दी। कैबिनेट ब्लॉक के इब्तदाई हिस्से में चंद कमरे आईबी के लिए मखसूस थे। रहमान ने इमारत में दाखिल होते हुए इशारे से अपने सरबराह के दफ्तर की निशानदही की और फिर एक कमरे में घुस गया। इसका कमरा सादा और पुरवकार था। इसने बताया कि इस ब्लॉक में आईबी के डीजी और चंद अफसरान ही बैठते थे। दूसरे दफातर किसी और ब्लॉक में वाक़या थे। रहमान ने अपनी मेज संभाली ही थी कि इसके स्टेनो फोन की घंटी बज उठी। इसने अपने मातहत से कुछ पैगामात सुने, चंद नंबर मिलाने की हदायत की और फिर अपनी मेज पर रखा हुआ कंप्यूटर ऑन कर दिया। इस ब्लॉक में शायद मुल्क के हसास तरीन दफातर सिमटे हुए हैं। अव्वल खान ने सताइशी लहजे में कहा, हाँ, इसे तुम हुकूमत का असाबी मरकज भी कह सकते हो। सदर और वजीर आजम की तरफ से कर्रियों और तबादलों के सारे अहकाम इसी ब्लॉक के एक हिस्से से जारी होते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए तुम हमें भी थोड़ी बहुत अहमियत दे सकते हो। शायद जलाल भी दफ्तर में नहीं है, मैंने बेतकल्लफी से कहा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।